Good afternoon, Dr. Bharat Bhushan. Good afternoon, sir. Good afternoon, madam. Good afternoon, Dr. Prasad. Dr. Vinita Katiyar also. गुड आफ्टरनून डॉक्टर स्वरूप जी Good afternoon, sir. सभी को Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. सभी को नमस्कार, sir. Namaskar. Visitor indicator. This call is the fifth shuffle. Fifth needed. Fifth escape. Fifth verify. Fifth RC. Fifth action. Fifth national. Fifth result. Remove this title button. Minimize button. Turn off microphone. CPR LSD. Please mute your mic. Thank you. So we'll wait for some time. It is 2:30. We said we will start. So we informed around 110 students of the Nagpur region, those who are going to appear for the coming June exam, including the certificate students of January 23. Make three button. Fifth national. Fifth happy board. Make fifth RC. Fifth verify. Fifth escape. Fifth need academy. Fifth shuffle message. This call is the visitor indicator button. Full bar. Bookmark this. Shweta Singh, please mute your mic. Yes, sir. I'm doing. Bookmark Yes. time off. Make folder. Full bar. Share this page button. अभी वहाँ पानी था रेस्टोरेंट के पास कल शाम को ही होगी Bookmark this app button. Then you feel DSCDVK. हाँ जी Okay, I muted it. So we'll wait. I asked Dr. Pandey, he's in some committee meeting, he said. Anyway, if he joins, we'll see. We'll wait for 5 more minutes, madam. Okay? Turn off microphone. Yeah, good afternoon, sir. I'm sorry for my this thing, mic, and I'm very sorry. And good afternoon, sir. Good afternoon to all, sir. Good afternoon, Shweta ji. No problem. Turn off mic.
Shall we start? Bharat Bhushan ji. Madam. G. We should go ahead. I think time is almost 2:30 now. So, Hemlata ji, shall we start? स्टार्ट कर लीजिए सर. ठीक है. Good afternoon to you all. Good afternoon. I welcome you all to this first activity of our disability cell at Arts Nagpur. On behalf of the Nagpur Regional Center, all our associates, the National Center for Disability Studies, IGNOU New Delhi, and Equal Opportunity Cell, IGNOU New Delhi. And on my personal behalf, I welcome you all for this session. Good afternoon and welcome to Dr. Bharat Bhushan, the chairperson of the Equal Opportunity Cell, and also Dr. Hemlata, the Additional Director in NCDS, New Delhi, and Dr. S.K. Prasad, Director of NCDS, and my other colleagues who joined from other regional centers and RSD. I think I could see Dr. Vinita Katiyar, Shweta Singh, and Nilofer, and all our student friends. It's a pleasure for us to invite you for this Samvad 10, the webinar on Divyang students know the special facilities provided by IGNOU for you. As a student, आप तो जानते हैं कि IGNOU बहुत सारी सुविधा देते हैं people with disabilities. अलग अलग सुविधा जैसे एग्जामिनेशंस में आपको एडिशनल टाइम देते हैं, राइटर को प्रोविजन देते हैं, और जब आप एडमिशन लेते हैं मैक्सिमम पीरियड में कंप्लीट नहीं कर पाते तो आपको एडिशनल पीरियड भी देते हैं, और एग्ज़ाम लिखने में असिस्टेंस भी देते हैं. ये सभी सुविधा हैं, बट हमने सोचा है कि आपको पूरा एक सिंगल सेशन में आपको ये सुविधा की जानकारी दे दे तो ये अच्छा रहते हैं. इसलिए आपकी सुविधा के लिए हमने ये प्रोग्राम चालू किया है. हमको ये अच्छा लगा कि ऑल आवर एक्सपर्ट्स इन दिस सब्जेक्ट, जैसा भरत भूषण जी हैं, हेमलता मैडम हैं, एस.के. प्रसाद जी हैं, ये सभी इस फील्ड में काफ़ी साल से फोकस्ड वे में IGNOU की तरफ से बहुत एक्टिविटीज़ ले रहे. इसलिए आई थैंक ऑल ऑफ देम फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन एंड ज्वाइनिंग हियर. एंड we invited around 110 students because we take from January 2020 onwards who are having their validity and who are going to appear in the coming June examinations, so that उनको भी एक मालूम हो जाए. जो ऑलरेडी सीनियर स्टूडेंट है उनको तो मालूम है, जो नया स्टूडेंट है जनवरी 23 में एडमिशन लिया सर्टिफिकेट कोर्सेज और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स में, उनको भी हमने इन्वाइट किया है. और वैसे यदि कोई मिस होता है तो ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसी को हमारा आरसी नागपुर के यूट्यूब चैनल में और फेसबुक में भी हम अपलोड कर देंगे. यदि अभी मिस होगा तो बाद में भी देख सकते हैं. तो आई रिक्वेस्टेड डॉक्टर यूसी पांडे टू ज्वाइन, बट ही इज समवेयर एंगेज्ड. सो वी विल स्टार्ट विथ डॉक्टर भरत भूषण, द चेयरपर्सन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल एट IGNOU न्यू दिल्ली. So I request Dr. Bharat Bhushan to address our students. Thank you, Dr. Sivaswarup ji. And I, on my behalf and on behalf of Equal Opportunity Cell, NCDS, I welcome the step taken by Dr. Hemlata ji and Dr. Prasad ji with Dr. Sivaswarup ji to organize this program under the aegis of
Samvad. I think this is the 10th episode of this program under Samvad title. Long back, I think 2-3 years back, this concept of having dialogues with our students and stakeholders was conceived, and when we discussed this idea with Honorable Vice Chancellor, he immediately agreed to have a platform to connect with our learners, particularly those students which are disabled, specially abled, and disadvantaged. So, very big-heartedly, the NCDS agreed to house this program in EOC, and regularly we are organizing this program with the help of our RCs. As we know, after establishment of this equal opportunity cell long back, I think in 2019, immediately in the beginning of 2020, COVID-19 erupts, and we had planned activities in very systematic way with Dr. Hemlata ji and now with Dr. Prasad ji, that at least we will have a series of meetings involving our RCs. And the very purpose of organizing this Samvad program was to establish our connect with our learners and sensitize the faculty, staff members of our university as well as regional centers to special needs and how to deal with our special students and what all steps we can take to involve them and extend whatever possibilities. So this equal opportunity cell was established under the mandate of University Grants Commission. Most of us knows that equal opportunity cell is mandatory to have in all universities and colleges and places of work all over India. In compliance of these activities, we established equal opportunity cell under NCDS. And since then, we have been organizing this program. When we say that equal opportunity cell or equal opportunities by the name of equal opportunity indicates that it is a program which is specifically meant for those who are not getting opportunity or facing any difficulty. So we want to facilitate those learners who are enrolled with us. We know we have more than 35 lakh students in our university, and definitely Dr. Hemlata ji and Dr. Prasad ji will share the facts that exactly, because 35 lakh student is a huge number as far as enrollment is concerned. And when we say that this is a total number, definitely we will be having many students which were having special needs. Special needs means we can think that they may be special students like the PWDs, they may be women's, they may be from SCs, STs, minority groups, or far from rural areas. So when we say that disabled or disadvantaged, it doesn't mean that we are talking about only physically challenged or SC, STs. Anybody who is facing difficulty in reaching to us or to
getting the facilities given by the government, they are covered under this umbrella. IGNOU, in its own capacity, has been taking various steps as far as inclusiveness is concerned. From time to time, we have been organizing the program at the level of RCs, at the level of headquarters also. Many of us who have attended our previous 9 program, they may be knowing it that we have called many big stalwarts in their own areas, like General Karzo, for the person who was known, I think I'm not able to pronounce his name in right way. Dr. Hemlata will be able to tell her, but he is the person who brought the idea of having just special requirements or special treatment for PWDs in government areas particularly. And most of us knows him for his bravery, which he had portrayed in front of us. Then we organized some lectures on women rights. In that area also we try to call some names, Madam Barua, Madam Tuli, and then Ranjana Kumari ji, and many more. They have been invited. All these lectures were convened in virtual mode. Virtual mode, as we know, that it has come up very effectively as far as dissemination of information or creating any awareness is concerned. And we are very blessed as far as distance and open education system is concerned. Working in IGNOU, we have a state-of-art technology. We have been using all these ICT technologies way back since our university was established in 1985. But for general public, this use of ICT and establishing the connection between students, learners, and other stakeholders, even inter-university and intra-university, like our RCs, which are spread on the national fabric from Andaman Nicobar to Leh Ladakh, and then from Kutch to Itanagar, Nagaland, Tripura, Mizoram, everywhere. You know, every bad thing has many things which gives us learning also. So the COVID-19, when it came, I think all of us knows, our university was only closed for hardly 10-15 days. When we realized that this COVID is going to be prevail for quite some more time, immediately university authorities decided to shift our teaching learning process to with the help of ICT. So why I am trying to say this, because this equal opportunity cell and this concept of Sankalp was brought in the public domain during this time only. And during this time from home, I remember how Dr. Hemlata ji used to connect with the person, and they were also easily available to deliver the lectures. And because participants, stakeholders, wherever we used to say to our regional centers, to our with the help of our study centers, they used to come online to attend those programs. So we were very successfully organizing all these programs through virtual mode, and on various topics, PWDs, especially then on women section, then SCs, STs, minorities, and on gender studies also. We could bring some big names to sensitize our students and our staff and faculty members at the headquarters.
if we see as far as a disability is concerned, PWD students, we will find like many other institutions in the country, but we don't have students most of the time on the campus. But it is a matter of appreciation that in our university, everywhere, the buildings are constructed in such a way that nobody feels any difficulty to reach anybody, any authority. It is so friendly made with the physically challenged students also by preparing ramps. And our university is, at the campus, at the headquarters, it is a multi-story building sometimes at many places, but it is reachable to every student. And thanks to NCDS, Dr. Prasad ji and Dr. Hemlata ji, at every division, every school, they have ensured that at least one wheelchair they have provided with their own efforts at every school division centers. This was the matter that we are feeling proud that this type of facilities are available. At the same time, when we started this program, our then regional director and currently he is Pro Vice Chancellor, Professor Srikant Mahapatra ji, he was there in the inaugural program with our Honorable Vice Chancellor, because he is a person who has visited, I think, most of the regional centers in our country. I'm little less fortunate to visit our RCs, but whatever RCs I have seen, they are also students friendly, and everywhere our staffs, our buildings, they are also made physically challenged, so that they can reach without facing any difficulty. So all these directions are mandatory in every institution, but these can be implemented only when we have the willpower. Otherwise, sometimes many guidelines, applications, they are issued, but they go unattended. But since this need is a mandatory, and for human resource development cannot take place without getting proper education. And many times our students, we are saying that our students are not face to face, but many times they are also need to visit physically and personally to our headquarters as well as our regional centers. So in this direction, we have taken many initiatives with the help of NCDS, because many of us may be knowing it, that NCDS type of centers, I don't find any university where a centers like National Center for Disabled Studies is established in any university. But IGNOU is a premier institution where authorities thought and they felt that it is necessary to do some research and development in this direction, so that the findings are implemented for the welfare of such students. And in this direction, I know our Honorable Vice Chancellor personally and in many programs has extended congratulations to NCDS in this direction. And we hope they will in future also will be doing, continuing with doing all such activities. And I'm also thankful that EOC is also housed in NCDS, and with their meager staff, they have been organizing all these activities. I don't have any staff as far as EOC is concerned in my office. All financial support, all human resource support that is provided by NCDS, and we had been organizing these programs at least once in a month, but during last few months
we are we had some difficulties, maybe administrative, because we were very busy in our own activities at the university. Convocation we have recently concluded. Our RCs were also busy, and again we are all entering to our examination, terminal examination. So I see that again, because we are organizing this program with the help of at least one RC, and like this time Dr. Sivaswarup has agreed very kindly that we will have this program, and Dr. Sivaswarup has taken a lead. I think this is the first RC where disability cell is established. For this, I congratulate you, and the initiatives taken by NCDS, Dr. Prasad ji and Hemlata ji, it is a very good beginning, and lead has taken by Dr. Sivaswarup ji by having a disability cell. I hope that our all regional centers, as mandated, they will have such type of cells, and I believe whatever support, because Dr. Sivaswarup is a leader now in by establishing this disability cell. So his learnings definitely will be useful for establishing other disability cells in other RCs. One or two more things before I conclude, as far as the time slot which is given to me. I would like to request the RCs who have connected with us today that as far as equal opportunity is concerned, we know that we have been extending financial supports to in the form of scholarship to our learners. IGNOU has been extending the support of their own also by giving free ship to our students. Earlier, the number of programs for which free ship was given was a huge number, but you know, in many programs like in certificate, etc., many students were not turning up. Now we have confined it to bachelor's degree program only, BSc General, BA, BCom. But still, the number of students who are availing is same. It is not reduced. But as per the government directives, we are not stopping it, but we want to continue it. But in phased manner, we want to transfer this free ship to central government schemes, National Scholarship Portal. As far as scholarships for SC, ST, women, OBCs, minorities, students are concerned. So, with the help of this platform, I would like to apprise you all, our study centers who have joined us today, our RCs who have joined us today, that whenever admission process starts, I would like to request you to at least prepare some sort of brochures or pamphlets and posters which can be placed on the regional centers, notice boards, and at the study centers also, that scholarships are available for SC, ST, PWDs, women's, OBCs, minorities, as per the government schemes. I'm not giving it, by saying this, I'm not giving or I'm not guaranteeing that definitely will be, but if these provisions are available in the National Scholarship Portal, the students should make use of them. By doing this, the students who are getting facilities, scholarships under the aegis of Indira Gandhi National Open Universities, their number will not decrease. And we know, as far as our management is concerned, the scholarships, the fellowship which we have been giving, we are giving from own funds, Indira Gandhi National Open Universities funds. So, because we are not getting it, we want to shift this responsibility on National Scholarship Portal, and central government has also advised us to
in a phased manner we can do it. So in this direction also, some awareness programs can be organized, and on the advice of Honorable Vice Chancellor, I'm also thinking that sometime when admissions, this summer examinations will be over, we will have a full-fledged program with all RCs on availing these scholarships by the IGNOU learners under the NSP portal. We will be starting it. So with these words, I would like to conclude, and I want to congratulate also Dr. Shiv Kumar ji and Regional Center and his team to having established a disability cell in the Regional Center Nagpur, and our NCDS will also take lead and help other RCs to establish such centers as per the mandate. Thank you. Thank you very much. Thank you, Dr. Bharat Bhushan ji, for a very wonderful talk on various issues about the equal opportunity cell. Even you said that it started in 2019 and various activities you are taking. Of course, हम तो ऑनलाइन लेक्चर्स तो हम भी पार्टिसिपेट करते रहते हैं, और इक्वल अपॉर्चुनिटी में मैं तो ये भी बताता हूँ कि इग्नो वी आर गिविंग फ्री शिप टू प्रिजनर्स आल्सो, वी आर गिविंग देम इक्वल अपॉर्चुनिटी to study by sitting in jail also. Recently, we gave around 8 certificates of UG and PG to our prisoners in Nagpur Central Jail. And as you said, in the Delhi, wheelchairs are provided at each division and school at the behest of the NCDS. I would like to say that in Nagpur, ours is a rented building. To reach our main building, they have to climb around 15-20 steps. So for the convenience of the students, we kept our inquiry counter at the ground floor itself, so that they need not climb all the steps. Even if someone is facing difficulty, we go downstairs and we attend to their queries. So we are taking within the rented building also whatever we could meet. Thank you very much. And this NSP portal you said, it is also very useful information. Even though we are sharing it, we will make it a flyer for that, and we will publicize that aspect also. Thank you very much for a very wonderful talk. So nice of you. Thank you. Now I request, as per schedule, Dr. Hemalata ji, Additional Director of NCDS, and to explain our students about various facilities. Hindi, English, दोनों चलेगा मैम students के. Okay, sir. Thank you. Thank you for मुझे बताने के लिए. Actually, I was about to ask, should I speak Hindi or English or mix? Mix is better for them. Mix is better. Then I'm sorry, I could not. मैं हिंदी में नहीं बोल पाया. मुझे हिंदी बहुत अच्छी आती है वैसे, लेकिन मुझे लगा कि लेकिन फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं हिंदी में आंसर दूंगा. अभी स्टूडेंट्स को भी मैं ये बता दूं, ये तीनों एक्सपर्ट से रहेगा. आपको प्रेजेंटेशन के बाद आपका जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं जी, स्कॉलरशिप के बारे में क्या क्या वो फैसिलिटीज है. ठीक है, ओके. Thank you, Dr. Shiv Sarup, for organizing this. And first of all, I would like to thank our authorities. मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमने जो संवाद प्रोग्राम जैसा डॉक्टर भारत भूषण ने बताया वो तो हम लोग कर ही रहे थे. ये 10th सीरीज है संवाद में, बट जैसे ही हम लोगों ने प्रपोज किया कि हम एक डिसेबिलिटी सेल बनाना चाहते हैं हर रीजनल सेंटर में, और वो प्रपोजल हमने 9th मई को भेजा था, और वो तुरंत हमारा प्रपोजल अप्रूव हुआ, और उसके बाद 17th मई को सारे रीजनल सेंटर्स को एक मेल चला गया कि हर रीजनल सेंटर में एक डिसेबिलिटी सेल होना चाहिए. तो ये नोटिफाई भी हो गया. तो ये शो करता है कि हमारे अथॉरिटीज डिसेबिलिटी के प्रति और जो हमारे स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए प्रति कितनी सेंसिटाइज्ड है. और इस सेल को बनाने का जो पर्पस था दैट वाज कि एक तो अवेयरनेस हो, हमारे जो लर्नर्स हैं डिसेबिलिटी वाले उनमें एक अवेयरनेस हो एडमिशन से पहले. उन्हें कई बार क्या होता है, एडमिशन से पहले भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जरूरत होती है उनको, काउंसलिंग में, डिफरेंट एक्टिविटीज में, वो एक फैसिलिटेट करे ये सेल. दूसरा इस सेल का पर्पस है कि एडमिशन के प्रोसेस में हेल्प करे, स्टडीज में हेल्प करे स्टूडेंट्स को,
और एग्जामिनेशन के टाइम में कई सारे स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा टाइम के लिए स्क्राइब की भी जरूरत होती है, या एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, उसके लिए भी एक प्रोसेस है, वो सब करना होता है। और एग्जाम अभी आ रहे हैं, तो डॉक्टर शिव स्वरूप ने मेरी जब कल उनसे बात हुई तो ही सेड कि एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि एक सेशन हम पहले कर लें। तो ये इट इज सो नाइस ऑफ हिम कि उन्होंने ये लीड ली, इसको पहला डिसेबिलिटी सेल में ये प्रोग्राम किया। और इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि इवेल्युएशन के वक्त में कई बार स्टूडेंट्स का कोई मार्क्स अपडेट नहीं होते हैं, या असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, तो उसको हम प्रायोरिटी बेस पर स्टूडेंट्स के लिए करें। इसके साथ साथ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी किस तरह के इश्यूज आते हैं उसका भी एक डाटाबेस मेंटेन रखें, एक रजिस्टर मेंटेन करें, ताकि आगे आने वाले टाइम में भी हम एक दूसरे से सीख भी सकें। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है हम चाहते हैं कि हम उनको भी कोलेट करें, इकट्ठा करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। और इसके अलावा रीजनल सेंटर में एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। जो भी स्टूडेंट हमारे पास आता है उस स्टूडेंट को किसी भी तरह की बाधा ना रहे। जैसा कि डॉक्टर शिव स्वरूप ने बताया कि इनके रीजनल सेंटर में इन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने सीढ़ियों के नीचे रैंप से पहले वो व्यवस्था की है। और इसी तरह से आप लोग जो भी हमारे रीजनल सेंटर में लोग हैं वो उस तरह की चीजें कर सकते हैं। तो हमारा पर्पस ये है कि हमारे जो स्टूडेंट आते हैं, डिसेबिलिटी जिनको है, उनको हम कैसे फैसिलिटेट करें, उनको कैसे हम सुविधाएं उपलब्ध कराएं। अगर हम देखें डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स के हिसाब से अगर देखें तो इग्नू में एक सबसे बड़ी बात जो है वो है कि हमारा जो मटेरियल होता है वो बहुत एक्सेसिबल फॉर्मेट में लिखा जाता है। हमारे स्टूडेंट्स जो है वो आसानी से उस मटेरियल को पढ़ सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। और ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है कि हम कितनी तरह की डिसेबिलिटी है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कितनी तरह की डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको हम फैसिलिटेट करते हैं। आज की डेट में हम लोग अगर देखें, हमारे यहाँ राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, उस एक्ट के हिसाब से 21 तरह की डिसेबिलिटीज है। और इन डिसेबिलिटीज का वाला कोई भी स्टूडेंट जब इग्नू में एडमिशन लेता है और उसे कोई भी इशू उसका होता है, उसकी पढ़ाई से रिलेटेड, उसके असाइनमेंट से रिलेटेड, तो उसको फैसिलिटेट करने की कोशिश हमारे रीजनल सेंटर पे होती है, हमेशा ही होती है। और फिर भी स्टूडेंट्स को अगर कोई दिक्कत आती है तो वो नेशनल सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज को लिखते हैं या अलग अलग अथॉरिटीज को लिखते हैं। और इन्हीं चीजों को और ज्यादा मदद करने के लिए ये डिसेबिलिटी सेल बनाई गई है। और ये 21 तरह की डिसेबिलिटी जो है वो मैं इसके बारे में बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगी, मैं जस्ट बात करूंगी कि कौन सी 21 तरह की डिसेबिलिटी है, ताकि हमारे यहाँ जो आज जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको थोड़ा पता रहे। तो एक होता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें कि चलने फिरने में कोई दिक्कत हो सकती है, हाथ में या पैर में कोई दिक्कत हो सकती है। दूसरा है लेप्रेसी क्योर, जिन लोगों को पहले कभी लेप्रेसी हुई हो वो उससे ठीक हो चुके हैं, लेकिन उसकी वजह से उनकी बॉडी में कुछ डिफॉर्मिटीज आ गई है, वो अपना काम नहीं कर पाते हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी इस कैटेगरी में आते हैं। सेरेब्रल पाल्सी जो है ये एक न्यूरोलॉजिकल इशू है, प्रॉब्लम है, और जिसकी वजह से डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है ये, और जिसकी वजह से हाथ में प्रॉब्लम हो सकती है, चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी सहायता की जरूरत होती है। वो सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाते हैं, कई बार चलने में भी दिक्कत है, बोलने में भी दिक्कत हो सकती है, तो इन स्टूडेंट्स को भी सहायता की जरूरत होती है। इसके साथ साथ ड्वार्फिज्म, ये एक नई कैटेगरी है डिसेबिलिटी की। जो भी व्यक्ति की हाइट 4 फुट 10 इंच से कम है वो ड्वार्फिज्म की कैटेगरी में आते हैं। और जैसे जैसे हाइट व्यक्ति की कम होती जाती है वैसे वैसे डिसेबिलिटी का परसेंटेज बढ़ता रहता है। और अगर हम सोचें, आम आदमी सोचे कि ये ड्वार्फ लोग जो है इनको क्या डिसेबिलिटी है, लेकिन अगर देखा जाए हमारे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे दरवाजों की कुंडियां हैं, हमारे स्विचेस हैं, हमारे वॉश बेसिन्स हैं, बाथरूम टॉयलेट्स हैं, वो सारे जो है एक एवरेज हाइट के हिसाब से बनाए गए हैं जिसको आम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन जो लो हाइट के लोग हैं उनको इन सब चीजों को इस्तेमाल करने में भी दिक्कत होगी, बस पे चढ़ने में दिक्कत होगी, ट्रेन में चढ़ने में दिक्कत होगी। तो हमें ये सारी चीजें हमारे रीजनल सेंटर पे भी जब हमारे स्टूडेंट्स आते हैं तो वहां भी हमें ये देखने की जरूरत है कि अगर कोई ड्वार्फ स्टूडेंट है तो उसके इश्यूज और हो सकते हैं। हो सकता है वो बच्चा हमारा टॉयलेट भी यूज ना कर पाए, और टॉयलेट जाना या पीने का पानी की व्यवस्था जहाँ होती है हमारी, वो टैप ऊपर हो सकता है। तो हमें ये इंश्योर करना है। तो हमारी जो डिसेबिलिटी सेल है वहां पे हमारा ये काम
होता है, मतलब ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम इन स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करें। इसके साथ साथ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है, मसल्स में इशू की प्रॉब्लम की वजह से चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है। एसिड अटैक वाले स्टूडेंट्स भी, वाले लोग भी इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो 6 डिसेबिलिटी है, 6 डिसेबिलिटी को अगर हम मिलाएं तो ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं, जिनकी वजह से चलने फिरने, एक जगह से दूसरी जगह जाने, सामान उठाने में इस तरह की दिक्कत हो सकती है। फिर है ब्लाइंडनेस, जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, और इसके साथ साथ है लो विजन। लो विजन वो है जिसमें कि उनको बहुत कम दिखाई देता है। जो चीज एक आम आदमी को 200 मीटर से दिखाई दे जाती है, वो लो विजन वाले व्यक्ति को 20 मीटर से भी दिखाई नहीं देती है। तो इनकी भी नीड को हमें ध्यान रखना है। और इनकी जो विजन होती है वो टनल विजन होती है। इनको जो है विजन का जो फील्ड है, जैसे हम सामने देख रहे हैं कुछ भी तो हमें आसपास की चीजें भी दिखाई देती हैं, लेकिन इनका विजन का फील्ड जो है वो बहुत नैरो होता है, तो इन्हें देखने में दिक्कत होती है। कोई भी हमारे साइनेजेस लगे हैं, अगर ऊपर लगे हैं, उसे देखने में भी दिक्कत होती है। वो आई लेवल पे हो तो इनके लिए आसान होता है। डेफनेस, बिल्कुल जिनको सुनाई नहीं देता है, हार्ड ऑफ हियरिंग, थोड़ा उनको सुनाई देता है, लॉस होता है, हियरिंग लॉस है। स्पीच एंड लैंग्वेज, बोलने में तुतलाना, हकलाना या और तरह की जो स्पीच से रिलेटेड डिसेबिलिटी हो सकती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कि किसी भी चीज के बारे में रीजनिंग नहीं कर पाते। एक स्थिति में जो चीज होती है वो दूसरी स्थिति में भी वैसा होगा या नहीं होगा या अलग होगा, उसको भी करने में इन्हें दिक्कत हो सकती है। लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है। ऑटिज्म जो है, इसमें स्वलीनता, अपने आप में लीन रहते हैं, तो इस तरह के स्टूडेंट्स भी हमारे पास आ सकते हैं। तो हमें वो भी देखना होगा कि ऑटिज्म वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत क्वाइट रहना पसंद करते हैं, सोशल इंटरेक्शन उनका नहीं होता है, वो उनके रूटीन्स अपने फॉलो करते हैं। जब वो एग्जाम देने बैठे तो वहाँ भी एक होता है कि बिल्कुल शांत होने की जरूरत है। अगर वहाँ शोर हो रहा है या बहुत लोग आ रहे हैं तो वो उस वक्त भी उनको दिक्कत हो सकती है। मेंटल इलनेस में एक मेंटल इलनेस रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसंस जो है, ये दोनों जो है ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। इसके साथ साथ 3 डिसेबिलिटी है जो ब्लड रिलेटेड है, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल डिसीज। और एक लास्ट जो डिसेबिलिटी है वो मल्टीपल डिसेबिलिटी। जो भी डिसेबिलिटी की मैंने बात की, इन डिसेबिलिटी में से कोई 2 या 3 डिसेबिलिटी, एक से ज्यादा डिसेबिलिटी अगर किसी व्यक्ति में होती है तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटी कहलाती है। तो अब बात आती है कि ये किस तरह की, इतनी तरह की डिसेबिलिटी है, और इस तरह की डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट जब हमारे रीजनल सेंटर में आते हैं तो हर स्टूडेंट की नीड जो है वो अलग तरह की हो सकती है। हो सकता है हमारे पास कोई ब्लाइंड स्टूडेंट आए, तो जो ब्लाइंड स्टूडेंट होगा वो उसका हियरिंग तो ठीक होता है, लेकिन उनका विजन का प्रॉब्लम है, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में समस्या हो सकती है। वो जो हमारा मटेरियल हमने जो दिया है वो उस मटेरियल को नहीं पढ़ पाएंगे। उनके लिए जरूरी है कि हम उनको जो मटेरियल प्रोवाइड करें वो सॉफ्ट कॉपी में हो, वर्ड फॉर्मेट में हो, या कोई टॉकिंग बुक फॉर्मेट में हो। अब हमने जो वीडियोस हमारे बने हुए हैं इग्नू के, तो वो सारा वीडियो जिसमें विजुअल भी होते हैं और विजुअल का सारा डिस्क्रिप्शन नहीं होगा अगर, तो हमारे स्टूडेंट्स को देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ हमारा जो मटेरियल है वो यूनिकोड फॉन्ट में अगर होता है, यूनिकोड फॉर्मेट में हो, जिससे कि वो अपने जो स्क्रीन रीडर है सॉफ्टवेयर है या वो जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसके माध्यम से वो उस मटेरियल को पढ़ सकें। तो एज अ यूनिवर्सिटी, एज अ रीजनल सेंटर, हमें ये देखने की जरूरत है इन स्टूडेंट को हम कैसे फैसिलिटेट करें। लो विजन वाले स्टूडेंट के लिए हो सकता है वो स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, हमें लगेगा कि स्टेयर्स देख सकते हैं, ये चढ़ जाएंगे, लेकिन वहां क्या होता है, उनके लिए हमें बहुत ब्राइट कलर्स यूज करने की जरूरत होती है ताकि वो जो डिस्टिंक्शन है वो उसको देख सकें। तो ये थोड़े एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड चीजें होती हैं जो हमें देखने की जरूरत होती है। और जैसा कि मैंने अभी बताया, जो लो विजन वाले लोग होते हैं उनकी टनल विजन होती है, यानी जैसे हम एक टनल के पार जब देखते हैं तो हमें यहाँ चौड़ा दिखाई देता है और दूर बहुत नैरो दिखाई देता है, तो उसी तरह से इनके साथ होता है। तो वहां हमें वो वाली चीज भी देखने की जरूरत है कि कैसे हम एज ए रीजनल सेंटर उनको फैसिलिटेट करें। इसके साथ साथ हमारे जो स्टूडेंट
असाइनमेंट सबमिट करने के लिए आते हैं। हमारे आम स्टूडेंट्स की ये समस्या होती है कि जब वो असाइनमेंट सबमिट करने आते हैं, बहुत बार उनका असाइनमेंट मार्क्स अपलोड नहीं हुए या कोई और इशू आ गया उनके साथ, वो दिक्कत हमें होती है। तो जब हमारे ये डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट आते हैं असाइनमेंट के लिए, तो वो भी हमें उनको, जैसे एक व्यवस्था हमने की है कि हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं, जो भी डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, कि वो हैंड रिटन के बजाय टाइप्ड असाइनमेंट्स दे सकते हैं। तो वो क्लियर हमारे जो भी हमारे डिसेबिलिटी सेल में जो है, हमारे रीजनल सेंटर में जो हमारे कलीग हैं, वो उनको ये बात बहुत क्लियर हो। दूसरी बात, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को पता नहीं चल पाता है कि मेरा असाइनमेंट में कौन सा असाइनमेंट जमा, तो वो शायद हमारे आरसी के साथ साथ हमारे जो लर्नर सपोर्ट सेंटर है, जहां से जिससे ये अटैच होते हैं, तो वहां थोड़ा क्लियर करके बताने की जरूरत है। क्योंकि एक बात जो अभी आ रही है हम लोगों के लिए, वो ये है कि हमें प्रोएक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है, कि हम अपनी तरफ से ये देखें कि जैसे डॉक्टर शिवस्वरूप ने देखा कि इनके आरसी में 100 स्टूडेंट्स हैं डिसेबिलिटी वाले, तो हम जब भी हमारा एनरोलमेंट होते हैं, या हमें पता है कि हमारे आरसी में पिछले 5 सालों के या जो भी करंट एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, वो मान लो हमारे 200 स्टूडेंट्स हैं, तो उन 200 स्टूडेंट्स को हम वो प्रोएक्टिवनेस वहां दिखाएं कि उनके जो असाइनमेंट्स हैं वो उन्हें पता हो कि कौन सा असाइनमेंट जमा करना है। तो हो सकता है उनको मेल पे अटैच करके अगर भेज सकते हैं, या उनको कॉपी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑल्दो इट इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, बट मेनी टाइम्स इट इज डिफिकल्ट फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सो हम लोग वो उस तरह की फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करें। इसके साथ साथ जो डेफ स्टूडेंट्स हैं, डेफ लोगों के साथ और एक और प्रॉब्लम होती है डेफ में, कि डेफनेस जो है ना, वो बड़ी साइलेंट काइंड ऑफ डिसेबिलिटी है, जो मतलब इनविजिबल है। किसी को, डेफ व्यक्ति को या स्टूडेंट को देख के कोई ये नहीं पहचान पाता कि ये डेफ है, और अगर हमें पता भी चल गया तो हम सोचते हैं उनको दिखाई तो दे रहा है, ये सब कुछ कर सकते हैं, बट वो कम्युनिकेशन उनके साथ नहीं होता है। तो वहां ये जरूरत है कि हम वो कम्युनिकेशन उनके साथ करें। राइटिंग में हमारा उनके साथ हो रहा है कम्युनिकेशन, अगर हमारे यहाँ वो आ रहे हैं स्टूडेंट, हमारे रीजनल सेंटर पे या हमारे लर्नर सपोर्ट सेंटर पे स्टूडेंट्स हैं, तो वहां भी इन स्टूडेंट्स को थोड़ा शांत रह के, थोड़ा सा मतलब इनके साथ हमें पेशेंस दिखाने की जरूरत होती है। तो पेशेंस के साथ हम इन स्टूडेंट्स को डील करें, और इनको जो भी फैसिलिटीज चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए, वो सपोर्ट चाहिए, वो देने की जरूरत है। इसके बाद सबसे बड़ा जो इशू आता है, आप लोग आरसी में हैं, आप लोगों को हमसे बेहतर मालूम है, हम लोगों को तो, क्योंकि जब हम एनसीडीएस में होते हैं शुरू से, जब से हम लोग एग्जाम होता है, तो उस वक्त हमारे पास काफी स्टूडेंट्स का एक आता था कि भाई हाँ, हमें जो है एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, स्क्राइब चाहिए हमें, और कई बार स्टूडेंट को ये भी नहीं मालूम होता कि वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट क्या होता है, तो वो एक डॉक्टर से लिखवा के ले आए। और कई केसेस में ऐसा हुआ कि हमें काफी इंटरवीन करना पड़ा, अपने आरसीज के साथ काफी ये चीजें करनी पड़ी। तो वो हमें समझने की जरूरत है, और एज यूनिवर्सिटी पर्सनल, आप आरसी जो है हमारा यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, जब आप वहां बैठे हुए हैं, तो हमें ये भी देखना है कि जो स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है, वो स्टूडेंट हो सकता है कि उस दिन अगर हमारा नोडल ऑफिसर नहीं है वहां, या छुट्टी पे है या कुछ है, तो हम उस वक्त हम अपने स्टूडेंट को कैसे फैसिलिटेट करें। क्योंकि क्या होता है कि कई केसेस में ऐसा हुआ कि स्टूडेंट वहां गया और आप वहां नहीं है उस वक्त, और कहा कि नहीं आप कल आइए। तो वी हैव टू रियलाइज द सिचुएशन कि एक ब्लाइंड स्टूडेंट को आपके यहाँ तक पहुंचने के लिए किसी को साथ लेके आना पड़ता है, और उनके लिए पढ़ाई कर पाना ही एक बड़ी चीज होती है कि फैमिली उनको पढ़ाई करने के लिए भेजे, और गर्ल्स है तो और ज्यादा मुश्किल होता है। और उसके बाद फिर ये अगर इस तरह की इश्यूज आते हैं, तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। उसका फर्क जो है, उसका असर जो है उनकी आने वाली पढ़ाई पे भी पड़ सकता है, कि आने वाले टाइम में कंटिन्यू करने में स्टडीज में उनको दिक्कत हो सकती है। तो आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा हमेशा ही होता है या हर जगह होता है, लेकिन there are few instances, there may be few instances। तो ये पर्पस जो था इस सेल को बनाने का, एक ये भी पर्पस था कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम कोई भी स्टोन अनटर्न न छोड़े, हम उनको कुछ भी, जो भी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो करें। एंड आरसी नागपुर इज डूइंग देयर बेस्ट। दूसरी बात जो एक है, हम लोग जो टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग तो प्रोफेशनल हैं, हम तो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और आप लोग
एकेडमिशियंस हैं और हमारे बहुत सारे ऐसे कोलीग्स हैं जो एकेडमिशियंस हैं, काफी सीनियर कोलीग्स भी हैं। तो हम लोग तो जब NCDS से जब भी डिफरेंट फैकल्टी के लोगों के साथ या बाकी लोगों के साथ जब भी सेंसिटाइजेशन या कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो एक बहुत इशू आता है कि हम ऐसी भाषा उनके लिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें लगता है कि ये बड़ी अच्छी भाषा है। हम कहेंगे डिफरेंटली एबल्ड, तो डिफरेंटली एबल्ड जो है हम हमें तो लगता है कि वी आर गोइंग एक्स्ट्रा माइल्स कि उनको एक अच्छा शब्द हम उनके लिए दे रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये जरूरी है कि हम एक अप्रोप्रिएट भाषा का इस्तेमाल करें, यथोचित भाषा जो है वो लैंग्वेज इस्तेमाल करें। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिफरेंटली एबल्ड हम उन्हें कहें पर्सन विद डिसेबिलिटीज, मतलब पर्सन फर्स्ट लैंग्वेज इस्तेमाल करें। पहले वो एक व्यक्ति है और उसके बाद उनकी डिसेबिलिटी आ रही है। इसी तरह से अगर हम कोई फिल्म बना रहे हैं, मान लो हमने कुछ ऐसी चीज बनाई, तो वहां भी हमें ये देखने की जरूरत है कि हम पहले ऐसा ना करें कि व्यक्ति का फेस दिखाने से पहले उसकी क्रच या उसकी व्हील चेयर दिखा दी हमने या उसकी छड़ी दिखा दी। होता है ऐसा मूवीज में भी, या क्योंकि हम लोग तो सेल्फ लर्निंग मटेरियल, वीडियो, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स हमारे बनते रहते हैं, तो वहां हमें वो देखना है कि पहले हम उस व्यक्ति को दिखाएं, उसके बाद हम उसकी डिसेबिलिटी की बात करें। तो पर्सन फर्स्ट लैंग्वेज यूज करें। इसके साथ साथ आपके पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते होंगे जिनको डिसेबिलिटी है, तो हम उनके ऊपर कुछ दया भी ना दिखाएं, ये कोई दया की बात नहीं है। या हम उनसे ये ना पूछे अरे ये कैसे हो गया तुम्हारे साथ, हाय तुम तो बड़े बेचारे हो, तुमने कुछ, क्या बड़ी दया आ रही है, आ जाओ बैठो। तो मतलब वो वाली चीज हम उनके साथ ना इस्तेमाल करें। बेहतर होगा कि हम उन्हें एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग हम उनको ट्रीट करें, और जैसे हम बाकी स्टूडेंट्स को ट्रीट करते हैं उसी तरह से उनको ट्रीट करें। और एक बात जो हम लोग डिसेबिलिटी में कहते हैं, हम कहते हैं हम उनके लिए एक रीजनेबल अकोमोडेशन की बात करें, यानी जो रीजनेबली जो चीज उनके लिए होनी चाहिए एज ए पर्सन विद डिसेबिलिटी वो हम उसको प्रोवाइड करें। और उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ कि हम लोगों के यहाँ प्रोजेक्ट वर्क होता है, डेजर्टेशन होता है। डेजर्टेशन के लिए हमें रिपोर्ट बनानी होती है, तो एज ए फैकल्टी या एज ए RC ऑल्सो अगर आपके पास स्टूडेंट आता है कि मुझे डेजर्टेशन करना है, डेजर्टेशन बनाना है और आई नीड हेल्प, तो आप उसके लिए उनको बुक्स बताएं, आप उनको बता सकते हैं कि भाई हाँ डेजर्टेशन की जो रिपोर्ट है आप उसको किस तरह से लिखेंगे। ये सब चीजें आप प्रोवाइड करें, सपोर्ट प्रोवाइड करें कि ये लिखें या आप बना के लाएं, हम आपको हेल्प करेंगे। ना कि हम उनको एक डिजर्टेशन पकड़ा दिया उनको कि लो आप इसको ऐसा बना लीजिए, तो वो रीजनेबल अकोमोडेशन नहीं है, क्योंकि वो फिर दया हो गई। हम पिटी, आउट ऑफ पिटी, या हम खुद लिख के आपके लिए हमने तैयार करा दिया, तो दैट इज पिटी। वी डोंट वांट यू टू हैव पिटी विद पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। उनके साथ एम्पैथाइज करने की जरूरत है, और जैसे व्यवहार बाकी बच्चों के साथ आप करते हैं उस तरह का व्यवहार, उस तरह की रीजनेबल अकोमोडेशन उनको प्रोवाइड करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ जो भी फैसिलिटीज जो हम यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको प्रोवाइड कर सकते हैं वो दी जाए। और इसके साथ साथ ये एक बहुत जरूरी है कि हम उन्हें ये भी बताएं कि ये प्रोग्राम्स हमारे जो हो रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेवल के प्रोग्राम्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं कि आगे के व्हाट आर आवर फ्यूचर स्कोप क्या है, फ्यूचर में हम किस तरह की चीजें करें, तो वो भी बताने की जरूरत है। और अगर देखा जाए एज ए यूनिवर्सिटी, तो हमारे पास एक्सेसिबल एनवायरनमेंट है, हमारी वेबसाइट एक्सेसिबल है, हमारे यहाँ रैम्प्स और लिफ्ट्स की फैसिलिटीज हैं, और जैसा आपने कहा आपने अपने रीजनल सेंटर में इस तरह से किया है, इसके अलावा बाकी और रीजनल सेंटर्स में भी फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है। और हमारे यहाँ एक सुगम्य पुस्तकालय जो है वो इग्नू में, हमारे पास एक्सेसिबल लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, जो हमारे ब्लाइंड स्टूडेंट है जो वो इस लाइब्रेरी की फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबरशिप ले सकते हैं, और उस लाइब्रेरी से 6.5 लाख से भी ज्यादा बुक्स इग्नू के अलावा और भी बुक्स उस में अवेलेबल है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर कंपटीशन की तैयारी करनी है, आपको लेजर के लिए पढ़ना है, आपको कुछ और वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे टाइटल्स उसमें अवेलेबल है। तो ये भी एक फैसिलिटी उनके लिए अवेलेबल है। इसके साथ साथ हम लोग टाइम टू टाइम बहुत तरह के प्रोग्राम्स उनके लिए करते रहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए करते रहते हैं, वो सारे उनके लिए अवेलेबल है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये 21 तरह की डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स
में से किसी भी तरह की डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति वाला स्टूडेंट अगर हमारे रीजनल सेंटर में आता है तो हमारा काम है कि हम उनको एक फैसिलिटेट करें, उनको एक रीजनेबल अकोमोडेशन प्रोवाइड करें और एक कंजीनियल एनवायरनमेंट हो, पीने के पानी की व्यवस्था जो है उनके लिए, टॉयलेट की फैसिलिटी उनके लिए होनी चाहिए, जो काम से वो आए हैं वो काम भी उनका होना चाहिए। तो इसके साथ हमारी जो डिसेबिलिटी सेल को एस्टेब्लिश करने का जो उद्देश्य है हमारा वो भी पूरा हो। एंड फॉर दैट पर्पज वी एट NCDS, मैं खुद एज NCDS और एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ NCDS आई एम ऑलवेज अवेलेबल। एंड किसी भी स्टूडेंट को या हमारे रीजनल सेंटर के कोलीग्स को डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी इशू, कोई भी हेल्प या कोई भी एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर। आई थिंक विद दीज वर्ड्स आई विल एंड माय थिंग हियर ओनली एंड ओवर टू यू डॉक्टर शिव स्वरूप। थैंक यू। Thank you, Dr. Hemlata ji, for a very elaborate explanation on various aspects of the disability, what we can extend. And आप एक बार ये सुगम्य पुस्तकालय में कैसा मेंबर बन सकता है एक बार बता दीजिए, so that students को भी एक Students, yes, students can write to us, either write to us or librarian of IGNOU, that and with their disability certificate that they are having visual disability and they cannot read, so they will give a login and password and they can read the books through that. So they can write to us. बहुत अच्छा। तो आपने बहुत अच्छा बताया। जैसे मैं आपको एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जैसे एक हमारा स्टूडेंट है मिस्टर मेहता, वो स्लो लर्नर हैं, वो भी एक तरफ की डिसेबिलिटी है। वो MS साइकोलॉजी किया है, उनके साथ उनकी मदर भी एडमिशन लिया है, दोनों कंप्लीट किया है। उन्होंने एक शक्ति लर्निंग सेंटर करके खोला है। ही हेल्प्स ऑल द डिजेबल्ड चिल्ड्रन इन हिज लर्निंग सेंटर। वो पहले तो BPP में एडमिशन कराते थे, अभी तो वो NIOS के थ्रू 12th करा के बहुत सारी उनके बच्चों को IGNOU में एडमिशन कराते रहते हैं BA। तो इस तरफ से दे एक्सटेंड देयर ओन हेल्प आल्सो एंड दे स्प्रेड द मैसेज। जैसे नागपुर में मैंने एक बार सिकल सेल सोसाइटी ऑफ इंडिया नागपुर चैप्टर में भी जाके उनको भी एड्रेस किया मैंने, IGNOU के थ्रू ये फैसिलिटी से आप एडमिशन ले सकते हैं करके। रिसेंटली हमने आनंदवन गया है, जहाँ बाबा आमटे ने लेप्रोसी पेशेंट्स का क्यूर सेंटर लगाया। वहाँ बहुत सारी लेप्रोसी क्यूर्ड पेशेंट्स हैं, वो अपने स्किल्स यूज करके कारपेंट्री वगैरह बहुत काम कर रहे हैं। उनको भी हमने सजेस्ट करके आया था। वहाँ एक स्टडी सेंटर खोलने के लिए हमारा प्रयास चालू है। वहाँ उनके पास कॉलेज भी है, आनंद निकेतन महाविद्यालय। सो हमने उनको भी बताया ये सभी लेप्रोसी क्यूर्ड पेशेंट्स हैं, वो सभी भी IGNOU के थ्रू कोर्सेज कर सकते हैं। वहाँ भी वही प्रॉब्लम है, उनको 7th 8th में पढ़ाई छोड़ दिया। हमने उनको भी यही एडवाइस दिया कि NIOS का सेंटर खोल के उसके बाद IGNOU से कर सकते हैं। ये हमारा एफर्ट चालू है। थैंक यू वेरी मच फॉर वेरी वैल्यूबल पॉइंट्स। नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर SK प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ NCDS, टू एड्रेस आवर स्टूडेंट्स और बता दीजिए प्लीज। Thank you, Dr. Shiv Swarup ji. First of all, let me congratulate you for establishing disability cell and activating it as well. आपको अभी ने डॉक्टर हेमलता ने काफी डिटेल में बताया कि डिसेबिलिटी के बारे में, कितने तरह के डिसेबिलिटी हैं और व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दोज डिसेबिलिटीज। मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगा आप लोगों से कि जो, क्योंकि वो कुछ इश्यूज आते रहते हैं पर्टिकुलरली ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम्स। वो इश्यूज आते हैं एग्जाम से लेकर के, स्क्राइब से लेकर के, और ये एक्स्ट्रा टाइम है, और पर्टिकुलरली स्क्राइब का ज़्यादा आता है कि किस तरह के स्क्राइब होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। ये मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडेंट भी हैं और हमारे रीजनल सेंटर के कलीग्स भी हैं। तो देखिए, दो इम्पॉर्टेंट सर्कुलर और मेमो कह सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पर्टिकुलरली, ये क्या हो गया राजकुमार क्या हो गया जी, ये क्या हो गया? उस समय से तो सब ठीक चल रहा था सर। ये तो सिस्टम में दिक्कत, आप उस साइड से कर सकते हैं सर, हमारे वाले
वहाँ चल रहा है? हाँ जी, चल रहा है। टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो कॉमन ही है। टेक्निकल प्रॉब्लम है प्रसाद जी के उसमें, तो वो दूसरे कंप्यूटर पे जा रहे हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। Please bear with us. हम भी चालू कर रहे थे, वाईफाई चालू किया, सडनली वो बंद हो गया, तो हमने मोबाइल डाटा कनेक्ट करके चला रहे थे, अभी suddenly बंद हो गया। सॉरी, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए मेरे हो गया आगे। डेस्कटॉप। करिए। तो ये कंप्यूटर, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम था। तो मैं कह रहा था कि दो गाइडलाइन है इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, दो इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने पर्टिकुलरली इसके लिए निकाला है कि स्क्राइब का कैसे यूज करेंगे हम, और जो फैसिलिटीज देने हैं एग्जामिनेशन के इसमें, उसमें क्या क्या फैसिलिटी देने हैं, उसका नाम ही है फैसिलिटीज गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग रिटन एग्जामिनेशन। पहला सर्कुलर है वो 2018 का सर्कुलर है, इसके पहले भी थे बट 2018 में उसको अमेंड कर दिया गया था सर्कुलर को, और उसमें कई फैसिलिटीज को ऐड किए गए। तो उसमें जो सबसे पहला है कि कैंडिडेट अपना स्क्राइब भी चूज कर सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट अगर अपना स्क्राइब चूज करते हैं तो उनको पहले ही एडवांस में एग्जामिनेशन बॉडी को बताना है कि हमारे ये स्क्राइब है और इनका ये पर्टिकुलर्स है। जो फॉर्म होता है उसको भरना है, ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन अब एग्जामिनेशन के टाइम में लेके पहुंच गए ये हमारा स्क्राइब है, उससे नहीं काम चलता है। उसके बाद क्या होगा कि उनको अगर अलाउ नहीं किया जाएगा तो वो फील करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट फीलिंग होगा। तो उसमें उनको पहले बताना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट जो हमारे साथ में जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं वो भी बाद में इसमें सुनेंगे, तो उनको अगर अपना स्क्राइब चूज करना है तो वो करें, उनकी स्वेच्छा है और उसमें वो फ्री है। लेकिन उसके बारे में उसको जानकारी रीजनल सेंटर में, कंसर्न रीजनल सेंटर में या कंसर्न एग्जामिनेशन सेंटर में भी देनी है। लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो स्क्राइब का जो क्वालिफिकेशन होगा वो जो एग्जामिनेशन के जो लेवल है उससे कम होना चाहिए। ये जरूरी है, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ जो एग्जामिनेशन बॉडी है, यानी कि हमारा रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर या एग्जामिनेशन सेंटर, वो भी स्क्राइब का व्यवस्था कर सकते हैं। और इसके लिए भी उनको ये कोशिश करना है कि जो कैंडिडेट है उससे वो स्क्राइब को एक दिन पहले या 2 दिन पहले उसको मिलवा दें, जिससे कि दोनों में एक रैपो एस्टेब्लिश हो जाए। जब वो क्योंकि जब कैंडिडेट बात करते हैं ना, बोलते हैं और स्क्राइब लिखते हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि उनको कैच करना। तो इसलिए पहले से थोड़ा सा मिल करके आपस में डिस्कस कर लेना वो बहुत जरूरी है। तो ये स्क्राइब का एक दोनों साइड से हो गया कि अगर हम प्रोवाइड करते हैं या कैंडिडेट प्रोवाइड करते हैं, दोनों को एक दूसरे के बारे में सूचित करना जरूरी है। दूसरा जो फैक्टर है फ्लेक्सिबिलिटी इन एनी चेंज ऑफ स्क्राइब। जब कभी कभी क्या होता है, अभी कुछ दिन लास्ट एग्जामिनेशन में एक मेरे पास रिक्वेस्ट आया कि हमने आज दूसरे स्क्राइब को ले आए हैं लेकिन वो हमें उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, किसी सेंटर की बात थी। तो इसमें एक फैक्टर है, चेंज करने के लिए अलाउ किया गया है इस गाइडलाइन में, लेकिन वहां पर भी अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपको उस शेड्यूल के बारे में बता देना है। कैंडिडेट को उसका पहले ही इंफॉर्मेशन देना है कि फलाने दिन में हमारे ये स्क्राइब होगी। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जिस स्क्राइब को हम रखे हैं पर्टिकुलर किसी दिन वो अवेलेबल नहीं है किसी अपने काम से, तो उस समय हम दूसरा स्क्राइब अगर चूज करते हैं तो उसके बारे में भी हमें प्रायर जानकारी देना जरूरी है, आइदर रीजनल सेंटर को और एग्जामिनेशन सेंटर को जानकारी। इसलिए कैंडिडेट को कभी कभी ये भ्रम हो जाता है कि हमने तो चेंज किया तो ये तो हमारा पर्पस है। नहीं, वो एक पर्टिकुलर गाइडलाइन है, उसके बारे में आपको पहले से जानकारी दे देनी कि आज के दिन में ये हमारे स्क्राइब होंगे। और इसका दूसरा एस्पेक्ट और है कि लैंग्वेज के कारण भी कभी कभी स्क्राइब को चेंज करना पड़ता है। मान लीजिए कि आज इंग्लिश का एग्जाम है और जो हमारे पहले के स्क्राइब थे उनको इंग्लिश प्रॉपर कॉम्प्रिहेंड करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ कॉम्प्रिहेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो कॉम्प्रिहेंशन के कारण हम स्क्राइब चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो जो अदर कंडीशन है स्क्राइब के वो इंपॉर्टेंट है और वो रहेंगे, जरूरी है। अच्छा, एक और फैक्टर है यहाँ पे, कभी कभी क्या होता है कि कोई एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है। ये एक जनरल है, हो सकता है हमारे यहाँ उस एग्जाम का नहीं रहता होगा, लेकिन कोई एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है तो उस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में भी हम उनको अलाउ कर सकते हैं पर्सन विद स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज को
लेकिन वहां पर भी एक फैक्टर है कि हम उस कंप्यूटर पे उनकी पहले कंप्यूटर से एकोमोडेट कर लें। जिस कंप्यूटर पे हमें उनको बैठाना है उस कंप्यूटर से उनको पहले जानकारी दे दें कि ये कंप्यूटर है, इसमें ये फैसिलिटी है, इसमें ये सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, आप इसको एक बार देख लीजिए किसी के देख रेख में, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा अपने तरफ से कैंडिडेट को लोड करने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि जो भी अगर हम कंप्यूटर सिस्टम पे कुछ एग्जामिनेशन देने की बात कर रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसा एग्जामिनेशन हो जैसे कि एंट्रेंस टेस्ट वगैरह में होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें अगर जरूरत होगी तो उसमें भी कंप्यूटर जो भी हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम को वो पहले से, यानी कि वहां भी फेमिलियरिटी विद सिस्टम होना बहुत जरूरी है कैंडिडेट का। तो ये इसकी थोड़ी सी जानकारी और इसका अपॉर्चुनिटी देना कैंडिडेट के लिए, कैंडिडेट को इस तरह का अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है। अब फॉर्म भी फिल करना जरूरी है। अगर स्क्राइब ले रहे हैं तो उसके बारे में समुचित जानकारी, जो फॉर्म है उसको पहले से फिल कर देना जरूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम सभी लोग जानते हैं, सारे स्टूडेंट्स भी जानते होंगे कि 40% डिसेबिलिटी का, बेंच मार्क डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट उनको हमेशा अपने साथ रखना है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट बताते हैं हमारे पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको सर्टिफिकेट नहीं है तो अलाउ नहीं कर रहे हैं तो गलत काम कर रहे हैं, नहीं। सर्टिफिकेट स्टूडेंट को अपने साथ रखना है क्योंकि वो उनका बहुत बड़ा आइडेंटिटी है, उनकी एलिजिबिलिटी प्रूव करती है। इसलिए हमेशा चाहे सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी रखें लेकिन सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी है। ये उस गाइडलाइन की ही बात मैं कर रहा हूं। एक्स्ट्रा टाइम की जहां तक बात है, एक्स्ट्रा टाइम गाइडलाइन के अनुसार एक्स्ट्रा टाइम पर्सन विद डिसेबिलिटी का अधिकार है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार भी वो अधिकार है। अब वो आपको पता है हम लोग 20% देते हैं, 20% पर आवर, यानी 20 मिनट्स, नॉट 20%, रादर 20 मिनट्स पर आवर वो हम देते हैं। यानी कि 3 घंटे का एग्जाम है तो 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 घंटे का एग्जाम है तो 40 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेगा टाइम। और वो टाइम इसलिए रहता है कि आप कंफर्टेबली लिख सकें। किसी को राइटिंग प्रॉब्लम है तो वो स्क्राइब की सहायता से, चूंकि बोलना है और दूसरे को लिखना है, तो वहां पर वो कंफर्टेबल अपने टाइम को मैच कर सके दूसरे के लिए। और उसमें वहां पर टाइम का जो कैलकुलेशन होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम पर्टिकुलरली टाइम को कैलकुलेट करते रहें। ऐसा नहीं कि कैंडिडेट को भी दिखा दे कि ये आपका टाइम अभी से शुरू होता है और इसके बाद इस समय तक आपका टाइम एलिजिबल है आप, क्योंकि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये पहले से थोड़ा सा दोनों का एकोमोडेशन बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और फैक्टर है जो इस गाइडलाइन में ही है कि कैंडिडेट शुड बी अलाउड टू यूज असिस्टिव डिवाइसेस लाइक टॉकिंग कैलकुलेटर। लेकिन टॉकिंग कैलकुलेटर वहीं पर यूज करना है जहां पर कैलकुलेटर एग्जामिनेशन में अलाउड है। अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो फिर टॉकिंग कैलकुलेटर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन अगर कैलकुलेटर अलाउड है, बहुत एग्जाम में होते हैं जहाँ कैलकुलेटर अलाउड होता है, जैसे मैथ वगैरह में होता है, तो वहां पर आप टॉकिंग कैलकुलेटर वहां पर उनको अलाउ करिए। और दूसरा है जैसे जो एड्स एंड एप्लायंसेज लाइक टेलर फ्रेम, ब्रेल स्लेट, एबेकस, ज्योमेट्री किट, ब्रेल मेजरिंग टेप एंड अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेज। अब कम्युनिकेशन डिवाइसेज में वो डिवाइसेज अलाउ नहीं है जिससे कि वो एक बाहर में कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन डिवाइसेज मतलब अगर वो आप आपस में कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है किसी को, तो वो आपस में अगर स्क्राइब है तो उनके साथ कुछ कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे सेरेब्रल पॉलिसी वगैरह में जरूरत हो जाती है, तो वो अलाउ करना वहीं तक। अब ये नहीं कि हम बाहर में ब्लूटूथ अलाउ कर ले, नहीं, ब्लूटूथ नहीं करना है। उसके बाद आप जानते ही हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट, ये भी एक ये पार्ट ऑफ एक्सेसिबिलिटी है। सीटिंग अरेंजमेंट प्रेफरेबली ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए। एक बार एक एग्जाम लेने, इग्नू के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अदर दूसरे किसी बोर्ड का एग्जाम था और वहां पे गए थे तो वो कैंडिडेट को बैठाए हुए थे 2nd फ्लोर पे। मैंने पूछा कि ये कैंडिडेट यहाँ तक पहुंचा कैसे, उसके पास व्हील चेयर भी नहीं था और उसमें लिफ्ट भी नहीं था उस बिल्डिंग में। ये बाहर के, दिल्ली का बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर में कहीं दूसरे स्टेट में और किसी जगह की बात। तो वो उसको 2-3 लोग पकड़ के लाए थे ऊपर तक, और कैंडिडेट इतना एग्जॉस्ट हो चुका था उस समय तक कि उसका आधा घंटा वहां सेटल करने में बीत गया। तो निश्चित तौर पे वो उसका बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो इस तरह इसलिए कोशिश किया जाता है कि ग्राउंड फ्लोर पे ही बैठाएं, और ग्राउंड फ्लोर पर बैठाना ही है। अब कोशिश की बात नहीं, अब तो एक्सेसिबिलिटी नॉर्म है, एक्सेसिबिलिटी लॉ है
लेकिन 46, सेक्शन 42, सेक्शन 43, सेक्शन 44 जो आरपीडब्ल्यूडी का है, वो बिल्कुल बाइंड करता है कि आपको एक्सेसिबिलिटी देना ही देना है, उसको नहीं देने से वायलेशन ऑफ एक्ट है। तो इसलिए ग्राउंड फ्लोर पे जरूरी है। और दूसरी बात ये भी है, जैसे हम टेबल दे रहे हैं, तो टेबल जैसे कि अभी डॉक्टर हेमलता ने कहा था कि उनका वो एक्सेसिबल मतलब पहुंच भी होनी चाहिए। अगर दूसरे को टेबल अगर 4 फीट का है और इनके अगर थोड़ा हाइट कम है, जैसे डॉर्फ है, कोई पर्सन विद डॉर्फिज्म है, तो उनका अगर वो 4 फीट पे नहीं पहुंच पाता है तो उनके लिए छोटे टेबल का इंतजाम करिए, छोटे चेयर का इंतजाम करिए। तो ये सब जानकारी पहले होनी चाहिए। और ये डिसेबिलिटी सेल जो आरसी में ओपन किया गया है, इसका ये पर्पस है। और इससे हमें लगता है कि काफी हद तक हम लोग कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने में सक्षम हो सकेंगे, क्योंकि हमारे पास किसी आरसी में कितने पर्सन विद डिसेबिलिटी, कितने स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी इनरोल्ड है, उसकी जानकारी डिसेबिलिटी सेल के पास अगर है, तो फिर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, कितने टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इनरोल्ड है, उसकी जानकारी हो जाएगी। किसके क्या नीड है, अगर हम 1-to-1 भी कांटेक्ट करना चाहें तो स्टूडेंट्स को कांटेक्ट कर सकते हैं कि उसकी क्या क्या नीड है। तो इससे क्या होगा कि हमारा एक सर्वे भी हो जाएगा और हमें पूरा डिटेल भी होगा स्टूडेंट का। और उसमें हम एनसीडीएस तो आपके साथ बराबर है, क्योंकि एनसीडीएस ही इस पूरे डिसेबिलिटी सेल को कोऑर्डिनेट भी करेगा रीजनल सेंटर के साथ, और साथ साथ अगर कहीं कोई जरूरत है तो उनकी जरूरत को भी हम इंफॉर्मेशन बेस्ड नेसेसिटी को हम पूरा करेंगे। तो ये तो एग्जामिनेशन से संबंधित हो गया। अच्छा, दूसरा अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी आते होंगे जिनका बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं है, 40% नहीं है, 40 से कम है, लेकिन उनको राइटिंग प्रॉब्लम है। तो क्या करेंगे? ये प्रॉब्लम आ रहा था और बहुत दिन से आ रहा था। ये बहुत जब से 2013 में फर्स्ट ये इसका गाइडलाइंस बना था कंडक्टिंग एग्जामिनेशन का, उस समय से भी ये कंसीडर नहीं किया गया था कि 40% से कम है तो उनके लिए क्या करना है। कभी कभी क्या होता है कि कोई टेम्पोररी राइटिंग प्रॉब्लम हो गया, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है या किसी के हाथ में फ्रैक्चर है और वो लिखने में असमर्थ है, तो क्या वो हम एग्जामिनेशन देने से डिप्राइव करेंगे? नहीं कर सकते। तो वहां उसके लिए ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ने एक नया गाइडलाइन इशू किया है, और वो गाइडलाइन 10 अगस्त 2022 को इशू हुआ है। उसकी मैंने कॉपी आरएसडी को भी दिया है, एसीडी को भी दिया है, स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन को भी, सभी को सर्कुलेट करें। उसका पर्पस वही है कि जो डिसेबिलिटी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट सेक्शन 2S में है 21 टाइप, और लेकिन वो बेंचमार्क नहीं है, यानी कि 40% नहीं है, 40% से कम है, 39 है, 38 है, 30 है, 20 पे भी हो सकता है, उनके लिए क्या करना है? तो इस गाइडलाइन के अनुसार, इस गाइडलाइन का नाम है, ये गाइडलाइन भी मैं सर्कुलेट करूंगा आपके साथ, सभी को दूंगा, सभी के पास में ईमेल कर देंगे हम। गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग रिटन एग्जामिनेशन फॉर पर्सन्स विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S ऑफ द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 बट नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2R, यानी कि 40% नहीं है उसके पास। सेक्शन 2R कहता है कि बेंचमार्क होना चाहिए, वो नहीं है। तो उनके लिए गाइडलाइन में ऑलरेडी है कि अगर वो इस तरह का है, कोई समस्या आ रही है और आपके पास स्टूडेंट हैं और आपसे वो स्क्राइब मांग रहे हैं, तो आप इस सर्कुलर के अनुसार, इस गाइडलाइन के अनुसार उनको स्क्राइब दे सकते हैं, प्रोवाइडेड, चाहे वो टेम्पररी हो, परमानेंट हो, हार्डली मैटर, प्रोवाइडेड उनके पास सर्टिफिकेट है। अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है और वो सर्टिफिकेट भी ड्यूली कंस्टिट्यूटेड मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, उसका मेडिकल बोर्ड का भी कंस्टिट्यूशन इस गाइडलाइन में दिया गया है, उसको मेडिकल बोर्ड में कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन होंगे और किनके द्वारा ये सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। अगर वो टेम्पोररी जारी करते हैं तो ठीक है, जब तक उसको जरूरत है तब तक देना है, जिस दिन जरूरत खत्म हो जाएगी उसका सर्टिफिकेट इनवैलिड अपने आप हो जाएगा। और जो परमानेंट है उनको परमानेंट, उनके लिए भी वही चीज है कि आपको बस देखना एक ही चीज है कि सर्टिफिकेट है कि नहीं है। सर्टिफिकेट है तो आप सारे वही रूल फॉलो करेंगे जो पहले वाले गाइडलाइन में, ये गाइडलाइन में भी वही चीज लिखा हुआ है, लेकिन फर्क इतना ही है कि सर्टिफिकेट पहले हम 40% से कम वाले को नहीं देते थे, आज हम 40% से कम वाले को भी देंगे, बिकॉज द गाइडलाइंस इज देयर। तो ये गाइडलाइन हमें उसमें हेल्प करता है कि आपको अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। पहले कुछ लोग थोड़ा एग्रेसिव भी हो जाते थे,
बच्चे की हम कैसे कैसे लिखेंगे, मेरे पास तो प्रॉब्लम है, कैसे लिखेंगे। तो अब कम से कम ये गाइडलाइन से वो सेफ हो गए और उनको भी दिया जा सकता है फैसिलिटी, अगर राइटिंग प्रोवाइडेड केवल राइटिंग प्रॉब्लम है और कोई फैसिलिटी नहीं दे सकते। अगर मान लीजिए कि उनको ग्राउंड फ्लोर पर अगर 38% है तो ग्राउंड फ्लोर पर देना ही है, वो तो देंगे ही, लेकिन स्क्राइब का जो है ना वो मेन प्रॉब्लम होता था, और वो ये गाइडलाइन जो है सो इसको कम से कम ओवरकम कर दिया, बहुत ज्यादा ओवरकम कर दिया है इसको गाइडलाइन के थ्रू, कि आप उनको स्क्राइब देंगे, देखेंगे सारे स्क्राइब के गाइडलाइन वही है, स्क्राइब की कंडीशन वही है, बस फर्क इतना ही है कि आपको ये देखना है कि प्रॉपर सर्टिफिकेट है कि नहीं है। सर्टिफिकेट है तो आप अलाउ करिए, उनके लिए सारी व्यवस्था करिए और सारे वही फॉलो करें प्रोसीजर जो एक पर्सन विद डिसेबिलिटी अबव 40% और 40% अबव के लिए करते हैं, सारे वही फॉलो करने हैं। तो ये दो गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली एग्जामिनेशन सिस्टम से रिलेटेड। बाकी जो बात है एक्सेसिबिलिटी की, तो एक्सेसिबिलिटी तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 इयर्स के अंदर लोगों को करना था। 2017 में ये लागू हुआ था एक्ट, मई 2017 में, और ये 2022 मई में पूरा करना था। तो अभी तक तो गाइडलाइंस बन गए हैं, चलो कुछ गाइडलाइंस काफी जगह बने हैं, लेकिन उसके एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि हम टाइम के कारण बैठे रहे, जहां तक हो सके हम अभी जो हमारी नई बिल्डिंग बन रही है, जितनी भी बिल्डिंग बन रही है वो सारे एज पर बिल्डिंग बायलॉज, जो गवर्नमेंट अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का जो बिल्डिंग बायलॉज है उसके अनुसार ही बन रहा है, कि सीपीडब्ल्यूडी बनाता है वो दूसरा बनाएगा ही नहीं, तो वो तो हमारा अंडरस्टूड है कि एक्सेसिबल होगा ही होगा। लेकिन जो हमारे बिल्डिंग एक्सेसिबल नहीं है, जैसे अभी डॉक्टर शिव स्वरूप जी ने कहा था कि वो उनका रेंटेड बिल्डिंग है तो उन्होंने एकोमोडेट किया है, तो ये एकोमोडेशन जरूरी है कि हम कैसे एकोमोडेट करते हैं अपनी बिल्डिंग में, क्या एकोमोडेशन कर सकते हैं वो एक इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है कि और इम्पोर्टेंट है कि क्या हम रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं, उसमें रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे एक डेजिग्नेटेड वॉशरूम बनाना बहुत जरूरी है, डेजिग्नेटेड वॉशरूम यानी कि एक्सेसिबल वॉशरूम, उसमें कोई ज्यादा खर्च भी नहीं आता है और ज्यादा उसमें बनाने में बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट भी नहीं है, लेकिन वहां पर यह है विल पावर, अगर हमारी विल है तो हम बना दें, तो वो रेट्रोफिटिंग का पार्ट है। हम लिफ्ट लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, मान लीजिए हमारा रेंटेड बिल्डिंग है, तो क्या हम अपने लैंडलॉर्ड से बात करके इतना एकोमोडेशन कर सकते हैं, इतना रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो ठीक है, उसमें करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसमें एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सिप्डा स्कीम है, सिप्डा का मतलब है कि स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, उसमें इसी पर्पस के लिए वो स्कीम बनाया गया है कि अगर आपको अपने बिल्डिंग को रेट्रोफिटिंग करना है, लेकिन वो गवर्नमेंट बिल्डिंग होनी चाहिए, वो रेंटेड बिल्डिंग के लिए नहीं है। अगर गवर्नमेंट बिल्डिंग है, पुराना बना हुआ है, और उसमें अगर रेट्रोफिटिंग करना है तो हम अपना बाकायदा उसका प्रोजेक्ट बना के थ्रू सीपीडब्ल्यूडी, जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन करेगा उनके थ्रू हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को भिजवा सकते हैं, और उसके वो स्क्रीनिंग करते हैं और उसके बाद वहां से फंड भी करते हैं, पर्टिकुलरली लिफ्ट वगैरह लगाने के लिए। तो खास करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को फंड जरूर मिलता है, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मिले, स्टेट यूनिवर्सिटीज को मिले हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मिले हैं। तो वो स्कीम का भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले उसके लिए हमें एक्सेस ऑडिट कराना बहुत जरूरी है। तो अगर हम थोड़ा सा समय निकाल के, थोड़ा सा अपना समय और थोड़ा सा फाइनेंस को, हल्का सा फाइनेंस को भी निकाल करके एक्सेस ऑडिट करा लें, तो क्या नीड है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर सकते हैं अपने 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 सेंटर में, रीजनल सेंटर में। और ये जो हमारा डिसेबिलिटी सेल है, ये इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। हम डिसेबिलिटी सेल के सारे कोऑर्डिनेटर्स के साथ भी मीटिंग करेंगे, उनके साथ एक टाइम टू टाइम हम मीटिंग करते रहेंगे, अपना डिस्कशन करते रहेंगे। और एक इंफॉर्मेशन भी मैं देना चाहूंगा कि हमारे एनसीडीएस में हम लोग हर महीने कम से कम एक तो टेलीकॉन्फ्रेंस करते ही हैं। जैसे भाई हमने 2 दिन पहले ही किया है टेलीकॉन्फ्रेंस, उसमें था कि क्यों हमें पेरेंट्स को क्यों सेंसिटाइज करना चाहिए, पेरेंट्स एंड केयर गिवर को क्यों सेंसिटाइज करना चाहिए। उसमें हमने फॉर्मर डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को बुलाया था। तो वो लीगल एस्पेक्ट, एक्ट का क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट एंड देन सोशल एस्पेक्ट, सभी एस्पेक्ट को कवर करते हुए हम बताते हैं। तो अगर हम जिस दिन भी टेलीकॉन्फ्रेंस करेंगे, हम सभी से शेयर करेंगे, क्योंकि अब हमारे सारे डिसेबिलिटी सेल सारे रीजनल सेंटर में है, तो हम उनके साथ शेयर भी करेंगे
और अगर वो पार्टिसिपेट करें तो मतलब ऑटोमेटिकली हमारा डिसेबिलिटी सेल जो है स्ट्रेंथन होता चला जाएगा इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, और उसको हम फिर हमें यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करने में आसानी होगी। तो ये सब हमारा कोऑर्डिनेशन अगर हम कंटिन्यूअस करते रहें और एक साथ हमेशा, मतलब एक कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, वो कम्युनिकेशन अगर चलता रहे तो हम समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव अचीव करने में भी टाइम नहीं लगेगा, और ये जो जो स्टूडेंट्स का क्वेरीज होता है वो उसी समय एड्रेस हो जाएगा इमीडिएटली। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा स्टूडेंट्स भी इंटरेक्ट करें, जिससे कि हमें पता चले कि कि क्या उनके साथ क्या इशूज हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Thank you very much, Prasad ji. You gave very valuable inputs for the ensuing exam. Both the orders आपने बताया 2018 वाला और 2022 वाला, जो आपने बोला है कि लेस देन 40% डिसेबिलिटी वालों को भी हमको देना है। मुझे याद है 10 साल में हैदराबाद में था, कोई आते हैं तो लेस देन 40 वाला पूछते थे, सर हमको भी स्क्राइब दे दो। हम तो बोलते एज पर नाम से होना है। हम तो बोलते थे इग्नू में तो 3 साल में 6 साल तक लिख सकते हैं एग्जाम, तो इस बार ज्यादा नहीं, अगली बार यूज कर लो, जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है वही हम बोलते थे। बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आपने दिया है, थैंक यू वेरी मच। अभी हमारा 2 स्टूडेंट्स ने हैंड राइज किया है, एक है कोविड मनोहर एंड रौनित तिवारी। और कोविड मनोहर जी प्लीज जी सर। आस्क योर क्वेश्चन। सर मेरा एक क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डाउट था सर, स्क्राइब का। सर क्या क्या स्क्राइब्स का क्वालिफिकेशन तो उसमें सर आप तो सर जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था एक एसएससी सीजीएल का, तो उनमें एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था। 2 क्वालिफिकेशन मेंशन किया है आरपीडब्ल्यूडी जो एग्जाम कंडक्ट कराने के, इसमें 2 गाइडलाइंस मेंशन किया है। एक स्क्राइब जो रहता है एक खुद सेल्फ लेके आते हैं, और एक दूसरा रहता है कि इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। तो इंस्टीट्यूट जो प्रोवाइड करता है उसमें लिखा है कि जो क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, जो एग्जाम का मिनिमम क्वालिफिकेशन है उससे कम रहना चाहिए। बिल्कुल कम रहना चाहिए। और जो हम खुद लेके आते हैं सेल्फ वाला, उसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, जो कैंडिडेट है उससे 1 स्टेप बिलो रहना चाहिए। एक ही बात है। नहीं सर, मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे यूपीएससी में अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन एसएससी सीजीएल ले लिए, तो उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन अंडर ग्रेजुएट है, सॉरी ग्रेजुएट है। तो जो स्क्राइब रहेगा, अगर मैं लेके आता हूँ, सपोज मेरा क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मैं ग्रेजुएट कैंडिडेट लेके आ सकता हूँ, इवन दो एग्जाम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन है। पर अगर वही इंस्टीट्यूट या सेंटर प्रोवाइड कराता है तो उनको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि वो ग्रेजुएशन से कम रहे, यानी फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर, मतलब 3 ईयर का डिग्री है तो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में रहना चाहिए। तो ये एसएससी सीजीएल में एसएससी सीजीएल में जैसे आपने मेंशन किया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, जो एग्जाम हो रही है उससे कम रहना चाहिए। ये जो मैंडेट किया है, ये जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करा रहा है उसके लिए है। जो हम लेके आ रहे हैं उसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहना चाहिए वो 1 स्टेप बिलो क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, नॉट मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ एग्जाम रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम। हाँ तो ठीक, इसमें जैसे आपको कैंडिडेट का क्या क्वालिफिकेशन है उस समय तक, मान लीजिए ग्रेजुएट का एग्जाम दे रहा है बैचलर का, तो उस समय कैंडिडेट का क्या क्वालिफिकेशन है? सपोज इंटर है ना, मतलब हाँ सर, सपोज मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो एसएससी सीजीएल मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएट चाहिए, मतलब बीए बीकॉम ऐसे टाइप। देखो सीजीएल से आप इसको कंपेयर मत करिए। सीजीएल एक आफ्टर ग्रेजुएट एग्जाम है, ठीक है ना, इसलिए उसमें मिनिमम चाहिए ग्रेजुएट। अच्छा नहीं सर, उसमें कैसे जो आपने मेंशन किए थे ना सर, एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जो गाइडलाइंस है उसमें 2 क्वालिफिकेशन मेंशन किए हैं स्क्राइब के लिए। एक जो क्वालिफिकेशन है जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराता है, यूनिवर्सल है सर, एसएससी सीजीएल तो उसमें इंक्लूडेड है, पर बाकी जहाँ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या रिटर्न एग्जाम होती है वो सबके लिए यूनिवर्सल रूल्स मेंशन है।
तो उसमें एक मतलब कंफ्यूजन क्या होता है कि सपोज मैं अगर स्क्राइब लेके आ रहा हूँ और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है तो मुझे ग्रेजुएट अलाउ करना चाहिए, लेकिन वो क्या हो जाता है, वो मिक्सअप कर लेते हैं कि जो इंस्टीट्यूट वाला जो क्राइटेरिया ना वो यहाँ पे लगा देते हैं, तो बोलते कि ग्रेजुएट नहीं चलेगा, अंडर ग्रेजुएट लगेगा यहाँ पे। तो एक नहीं, इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर इंस्टीट्यूशन दे रहा है तो अगर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन आप दे रहे हो तो आपको हाँ जी, एग्जाम वो कैंडिडेट ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए, सिंपल बात है। हाँ हाँ अगर हाँ आप वही। ला रहे हो ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हो, इसका मतलब आप भी ग्रेजुएट नहीं हो। तो आप अभी ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हो तो आप उस एग्जाम से नीचे के लाइए, यानी कि +2 के स्टूडेंट को लाइए, को आपको लिखवाना है ना, आपको उससे उससे कोई नहीं स्पेशल हेल्प तो लेना नहीं है। आपको नहीं, कंटेंट का हेल्प नहीं लेना, आपको केवल अपने बात को वहां पर प्रेजेंट करना है उसके थ्रू। एक्चुअली सर इशू है ना, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट मिलते नहीं है एज अ स्क्राइब, वॉलंटियर करने को मतलब हेजिटेंट नहीं, रहते हैं वो, क्योंकि गाइडलाइन तो फॉलो करना पड़ेगा ना। देखो, गाइडलाइन तो बनाया गया है तो वो काफी कंसल्टेशन के बाद गाइडलाइन बनता है। इनफैक्ट ये जो गाइडलाइन बन रहा था तो मैं भी एक मेंबर था इस गाइडलाइन का। तो कंसल्टेशन होता है, सभी से होता है। और इसमें कंसल्टेशन केवल एग्जामिनिंग बॉडी से ही नहीं होता है, बल्कि पर्सन विद डिसेबिलिटी भी उसके पार्ट होते हैं। तो देखो, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन में कहीं ना कहीं हमें एक बैलेंस बनाना पड़ता है। आपको आपको देखना पड़ेगा कि हम नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिलना कोई एक्सक्यूज नहीं है। नहीं मिलना गाइडलाइन का ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मिलना हमारा प्रॉब्लम है। तो हमें मिलना चाहिए। अब उसके लिए अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इंस्टीट्यूशन से कहिए कि हमें आप स्क्राइब दे दीजिए, इंस्टीट्यूशन आपको स्क्राइब प्रोवाइड करा देगा, उसमें क्या है। और सर वो ब्लड ब्लड रिलेटेड लेके आ सकते हैं क्या स्क्राइब? ब्लड रिलेटेड भी ले सकते हैं, मना तो नहीं है ब्लड रिलेटेड लाने में, ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। और सर ये हम्म, सर्टिफिकेट का एक डाउट था, स्वावलंबन में सर किनके मतलब जैसे मेरा सर्टिफिकेट जो है उसमें कैसा है, दो हम्म, दो मेंशन रहते हैं परसेंटेज में, एक तो 40% रहता है या 100%। अब उसमें कैसा है कि हम्म, जैसे हम डिसेबिलिटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसमें लिखा रहता है मोर देन 40%। अब मेरे जो हाँ। स्वावलंबन कार्ड में सिर्फ 40% लिखा है, क्योंकि वो एक रूल है वैसे, मतलब कन्वेंशन है नहीं, कि मोर जितने भी। देन का जरूरत नहीं, 40% एंड अबव होना चाहिए बस। मेरे इसमें सर सिर्फ 40% लिखा है, मैंने डॉक्टर से भी पूछा था, एक्चुअली मेरा ठीक जो है, ठीक है, कोई आपका एलिजिबल है, कोई वैल्यू उसका प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है कोविंद जी, मनोहर जी, जी जी सर। ओके ना? हाँ हाँ सर, सर मतलब मैं अभी जैसे अगर कोई फॉर्म भरता हूँ सर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो जो मुझे हम्म, स्क्राइब मैं लेके आ सकता हूँ वो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं ग्रेजुएट ग्रेजुएट। लेके आ सकता हूँ, हाँ, वही। ग्रेजुएट लेके, बिल्कुल जी जी ग्रेजुएट लेके। ग्रेजुएट इज अलाउड, वही बता रहे प्रसाद जी, जी ठीक है। जी जी सर, जी थैंक यू सर। थैंक यू कोविंद जी। और और सर ये ईमेल आईडी पूछना था सर, सुगम्य पुस्तकालय का, जिससे मतलब किसका? कांटेक्ट करने के लिए सर। हेमलता जी, ये वो कौन से सुगम्य पुस्तकालय के हेम मेंबरशिप के लिए Write to ncds@ignou.ac.in. NCDS Yes, ncds@ignou.ac.in. We'll forward it. जैसा rc.nagpur@ignou.ac.in है ना, हर एक का यही है। एनसीडीएस मतलब नेशनल सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज, दिल्ली में रहते हैं। ये जी सर, आपको इसमें चैट बॉक्स में भी टाइप करके रखा है, देख लीजिए वो, है ना। जी जी सर। और उसमें सर डालिए, ईओसी पर डालिए, eoc@ignou.ac.in पर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। EOC, ठीक। ये वो हाँ, उस पर भी लिख सकते हो आप, eoc@ignou.ac.in, ओके मनोहर जी, और ncds@ignou। रीजनल सेंटर पे आ जाइए, जी हम जी बात सर, करते हैं, ठीक है। ठीक ठीक है, थैंक यू सर। ओके, रवनीत तिवारी जी, आपका कुछ प्रश्न है क्या? क्लियर हो गया? यस सर, मैं रूपल तिवारी की मम्मी हूँ। ओके, एक्चुअली मेरी बच्ची मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है। वो ठीक है। शक्ति लर्निंग सेंटर की ही स्टूडेंट है। ओके, तो मैं ही उसको पढ़ाती हूँ। तो मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे कि रूपल जब जी, क्वेश्चन पेपर पढ़ती है तो उसको काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ाते हैं, तो उसको थोड़ा सा हेल्प करने की ज़रूरत पड़ती है सर। मैं स्क्राइब रखना नहीं चाहती क्योंकि वो उतना कैपेबल है अपना आंसर शीट लिखने के लिए, बट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उसके साथ बैठूं और मैं उसको
क्वेश्चन में पेपर में थोड़ा सा मतलब आप समझ रहे हैं कि हेल्प करूंगी तो वो अपना आंसर शीट पास हो जाएगी। वो मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं सर कि उसके मेंटली मैडम को डिसाइड करते हैं कि वो कितने के पेपर दे सकती है। अभी जैसे वो कभी उसको 4 पेपर दिलाते हैं दिसंबर में, फिर जून में 3, फिर दिसंबर में 4, ऐसे हम उसको प्रिपेयर करवाते हैं। पर रूपल का प्रॉब्लम ये है कि कोई दूसरा स्क्राइब आके वो चीज समझ नहीं सकता है, क्योंकि वो इतना अच्छा उसका मतलब सोशल बिहेवियर नहीं है उसके साथ। ऐसा मैं पढ़ाती हूँ और मैम पढ़ाते हैं तो हमको पता है कि उसको कहाँ तक क्या क्या आता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर मुझे ऐसे इग्नू से परमिशन मिल जाए रूपल के साथ बैठने का, तो मैं उसको मतलब पूरा आंसर पेपर बताना ऐसा नहीं सर, बस हर पेपर में हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत अगर वो नहीं कर पा रही है तो उसको जस्ट बताने का है। तो वैसे वहां बैठने का परमिशन मिल सकता है क्या सर? हेमलता जी, आप देखिए मैडम, देखिए ऐसा है कि गाइडलाइन में कुछ इस तरह का, गाइडलाइन में स्क्राइब की बात करता है, स्क्राइब है, लैब असिस्टेंट है, जो भी है। लेकिन अगर उसको राइटिंग प्रॉब्लम है तब आप एज ए स्क्राइब बैठ सकती हैं, उसमें आप क्वेश्चन पढ़ के भी बता सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर राइटिंग प्रॉब्लम नहीं है और वहां पर उसको कुछ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ की पर्सनल थोड़ा सा रैपो जरूरी होता है, जिसमें कि फादर मदर का रैपो ज्यादा होता है, इसलिए उनकी हेल्प से काम हो जाता है वहां पे। लेकिन एग्जामिनेशन का एक डिग्निटी जो होता है ना, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो एग्जामिनेशन के डिग्निटी को कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में थोड़ा सा हमें लगता है कि उसको हैम्पर हो सकता है। लेकिन तो भी मैं कह रहा हूं कि एक हमारे एक्ट में एक रीजनेबल एकोमोडेशन की बात की गई है। उस रीजनेबल एकोमोडेशन को हम यूनिवर्सली नहीं लागू कर सकते, केस टू केस बेसिस पर दिया जाता है। और इसमें मैं आपको ये नहीं कर सकता कि मैं आपका परमिशन किया जा सकता है, इमीडिएटली हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बहुत सारे फैक्टर्स देखने होंगे। आपके साथ घर में और कोई अगर उसके ब्रदर सिस्टर और कोई हो, तो कोई उनसे जिस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं उससे नीचे के है, तो वो उसके साथ एज ए स्क्राइब अगर बैठ सकती है। लेकिन उसके लिए आपको दिखाना होगा किसी भी तरह से कि ये दिखने में असमर्थ है। तभी अदरवाइज गाइडलाइंस में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। और एज ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हम लोग गाइडलाइन को ही फॉलो करेंगे। गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगा। ठीक है रोनित जी, प्रसाद जी ने आपको क्लियर किया है, ठीक है। हम यस सर, ओके सर। as per नाम से हम कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। थैंक यू। अर्चना अटसुरे, आपका क्या प्रश्न है? अर्चना, यस सर। बोलिए। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रहा है, जी बोलिए। जी आ रही है। यस सर, मैं पूना से बात कर रही हूँ, अर्चना आठसुए। मैं ये ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप हूँ सर, 63%, और मेरा नागपुरी सेंटर है। तो कभी कभी मेरा ये प्रॉब्लम था कि अगर असाइनमेंट सबमिट अपलोड नहीं कर पाती, कुछ टेक्निकल इशू या कुछ इससे, तो मैं हमारे रिलेटिव से मेरे असाइनमेंट या कुछ ऐसे जमा कर सकती हूँ क्या? कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके सर, क्योंकि मैं पूना से नागपुर इतना दूर ट्रैवलिंग नहीं कर सकती। आप आने की जरूरत नहीं है, आप जाके एक जरूरी है कि वहां से एक्नॉलेजमेंट ले ले, आपने ये असाइनमेंट जमा किया, एनरोलमेंट नंबर से ये कोर्सेज के असाइनमेंट जमा हुआ है, वो बोल दीजिए। ओके। आप खुद जाने की ओके। जरूरत नहीं है। ओके। सर, अर्चना जी, मैं एक बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपने अभी कहा कि मैं ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप हूँ। हम लोग थोड़ा सा हैंडीकैप वर्ड को अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये आज के डेट में एक्सेप्टेड वर्ड नहीं है। तो आप भी अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा, यस है ना। सर, डेफिनेटली सर। और सर, मैं आप सभी का शुक्रगुजार करना चाहती हूँ कि आप सभी ने हमें बोलने का और हमें शेयर करने का मौका दिया। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे यूनिवर्सिटी से ये जो सेल शुरू हो रहा है, तो उसमें अगर रिक्रूटमेंट के बारे में, अगर दिव्यांग हम स्टूडेंट के लिए अगर जॉब के बारे में अभी अगर कुछ हो सके आपके थ्रू, जरूर बात करें, वो बहुत हेल्प होगा सर। थैंक यू वेरी मच। बीच बीच में जानकारी देते रहे, हम लोग बात करते रहे।
यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा पॉइंट बताया अर्चना जी, तो थैंक यू वेरी मच। और अभी हमारा एक दो कोलिग्स भी ज्वाइन किया अदर रीजनल सेंटर से, जैसे डॉक्टर नीलोफर हैं और कौन है डॉक्टर नीलोफर जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस है किसी का? स्टूडेंट्स कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस? अर्चना जी बोलिए, आप और कुछ बोलना चाहते हैं? सर क्योंकि सर मैं एम.ए. सेट नेट हुई और एमफिल भी किया है मैंने रेगुलर यूनिवर्सिटी से, लेकिन इग्नू सेंटर से मुझे और कुछ अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, जैसे MSW है, जैसे फॉरेनर लैंग्वेज है। तो मैं सोच रही थी अगर हम पढ़ाई भी इतनी कर रहे तो हमें वैसे जॉब भी अगर अलग अलग यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है तो वो हमारे बेनिफिट रहेगा, इसलिए मैंने ये पॉइंट रखा था। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, अच्छा। तो यदि और कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो डॉक्टर देवेंद्र भी ज्वाइन किया नहीं है, ठीक है। तो अभी जो हमारा, तो शैल वी कंक्लूड? हेमलता जी, प्रसाद Yes. जी और भारत भूषण जी, Yes, sir. और जी, कुछ yes. बोलना है? Yes sir, we can conclude now. तो जो राजेश वासनिक है, जो हमारा स्टूडेंट से डील करते रहते हैं, और जब हमने एक विजुअली चैलेंज्ड स्कूल में गया है, वहाँ का स्टूडेंट्स तो इनके नाम ही जिक्र किया है सर, वो तो बहुत हेल्प करते हैं, अपने पर्सनल फ़ोन नंबर भी दिया है उन्होंने। वो लोग इधर आने की ज़रूरत नहीं, वो फ़ोन करके इनसे बात करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि जब हमने डिजेबिलिटी सेल खोला है, इन्हीं को इसको इंचार्ज बना दें, सो दैट इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। तो अभी राजेश, ठीक है। वोट ऑफ थैंक्स दे देना। सर एक बात कहना चाहूंगी, जस्ट एक सजेशन था, जब आपने मोबाइल की बात की तो आपने अगर मोबाइल नंबर दिया है तो चाहे तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी का इस आरसी के साथ, जो राजेश वासनिक जी देख सकते हैं, एंड देन कैन टेक केयर ऑफ देयर नीड्स। बहुत अच्छा है राजेश, है ना? चालू कर दीजिए, मैडम और प्रसाद जी और भारत भूषण जी को भी उसमें जोड़ दीजिए, सो दैट उनको भी एक मालूम होता रहता है। ठीक है, ओके, थैंक यू नीलोफर जी, आपका मैसेज देखा हमने, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप कुछ बोल नहीं पा रहे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हाँ राजेश, कर थैंक यू लीजिए। सर। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर पी शिव स्वरूप सर का धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ये संवाद 10 एक प्रोग्राम स्पेशली हमारे दिव्यांग स्टूडेंट जो रीजनल सेंटर नागपुर से बिलोंग करते हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसके बाद मैं डॉक्टर हेमलता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे स्टूडेंट के साथ साझा की है और मुझे आशा है ये जानकारी उनको फ्यूचर में भी उनको मदद मिलेगी उस जानकारी से। और मैं श्री डॉक्टर संजय कांत प्रसाद सर का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने स्टूडेंट को उनके राइट्स के बारे में, उनके लिए जो रूल्स है और उनके लिए स्पेशल जो सुविधाएं इग्नू प्रदान करता है उसके बारे में उन्होंने जानकारी साझा करने के लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके साथ साथ मैं भरत भूषण सर का भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल के बारे में जानकारी देने के लिए मैं उनका आभारी हूँ। और साथ ही में मैं इग्नू नागपुर रीजनल सेंटर के जो हमारे दिव्यांग स्टूडेंट है जिन्होंने ये प्रोग्राम बहुत ही शांति से अटेंड किया है और अपने डाउट्स जो उनके एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट्स थे उनको उन्होंने श्री प्रसाद सर से वो क्लियर करने के लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और इग्नू नागपुर रीजनल सेंटर से मैं
आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। एट दी एंड मैं बोलना चाहता हूँ कि ये इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा इग्नोर नागपुर की यूट्यूब चैनल में और फेसबुक में भी हम अपडेट कर देंगे, तो जो भी ये प्रोग्राम मिस किया वो वहाँ देख सकते हैं। थैंक यू सभी को, नमस्कार। थैंक यू। ये डॉक्टर साहब इस प्रोग्राम की एक छोटी सी ब्रीफ शर्मा जी को भिजवा दीजिएगा यूनिवर्सिटी न्यूज के लिए। भेज दीजिए। ठीक, राजेश, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, Dr. Shusaru, for taking the initiative. So nice. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you.